ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନାମକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଞ୍ଚିତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଠାରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣେଇବି। ସୁସମାଚାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ତୃତୀୟରେ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ଏହା କହି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଥର ପିତରଙ୍କୁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ଏମାନେ ମାନେ କିଏ? 15 ପଦରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ପିତର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ? ପିତର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଜଣ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ସେଇ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫେସନକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ସାରା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମାଛ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଗୋଟାଏ ବି ମାଛ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ସାରା ରାତ୍ରି ଏମାନେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାତ୍ରି ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
निर्दिष्ट समय आवश्यकता अछि। जीशु कहिले डाहाण पाखरे जाल पकाओ। इंग्लिश बाइबल लिखा जाइछि कास्ट इनटू द राइट साइड। दक्षिण पाखरे पकाओ, डाहाण पाखरे पकाओ। तार अर्थ मध्य होई पारे सठिक जगार पकाओ। जदि आपण माने सठिक जगार जाल पकेबे नाही, से गोटे राति सारा राति हो, दुई राति हो, दिन हो, जेते दिन हो, आपण माने कदापि माछ धरी पारिबे नाही। सठिक जगार राइट साइड रे जाल न पकाइबा पर्यंत आपण माने माछ धरी पारिबे नाही। तापरे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा अनुसारे से माने दक्षिण पाखरे अर्थात सठिक जगार जाल पकेइले एवं जाल पकाऊ पकाऊ एते माछ आसिला, एते माछ जालरे पड़िला जे से माने आउ निजर सांग साथी मानकु डाकिबा पाई बाध्य होइले। 153 गोटी बड़ बड़ माछ से माने जालरू टाणी आनिबा पाई निजर संगी मानकु मधु डाकिबा पाई से माने बाध्य हेले। एवं ये समस्त कार्यक्रम हेला पोरे आमने देखिबा पाई पारुचु जे से कौन कले, समस्त सामने पितर को वर्तमान से पचारुचंती जे पितर तुमे कौन एमानंको ठारू मते अधिक प्रेम करुअछ? एमानंको ठारू निजर जाल, निजर माछ, निजर अध्य व्यवसाय ठारू तुमे कौन मते अधिक प्रेम करुअछ? किंबा निजर संगी मानक ठारू तुमे कौन मते अधिक प्रेम करुअछ? एई प्रश्न प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितर को पचारि थिले। एमानंको ठारू तुमे कौन मते अधिक प्रेम करुअछ? बंधु माने जगत रे ए प्रकार कौनसी विषय अछि कि आमानकु ख्रीष्टंकर प्रेमर विच्छिन्न करुची? पाउल जेपरि कहिले कि क्लेश, कि ताड़ना, कि ओलंगता, कि दुर्भिक्ष, कि जहाज भंग, कि क्ली ताड़ना, कि जहा किछि भी आमानकर आत्मिक जीवन प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रेम रे वृद्धि पाइबा पाई जेते प्रकार विपरीत परिस्थिति सृष्टि होना कहीं ताहा कौन आमानकर आत्मिक जीवन को ख्रीष्टंकर प्रेमरु ताहा कौन विच्छिन्न करि पारिबो कि? एमानंको ठारू आज आमाने पितर कौन कले ना माछ धरिबा पाई गले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तो मरीगले, जी कि जीशु को दुई दिन पूर्व कही मु मध्य तुम सांगे मरीबी। जीशु ताकू कहिले पितर कुकुड़ा डाकिबा पूर्व तुमे मते 3 थर अस्वीकार करिवो। समस्त कहिबा सत्वे मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्टन को पितर साधारण दासी मानक सम्मुखरे, दास मानक सम्मुखरे से 3 थर अस्वीकार करथिले। एवं सेई पितर मु तुम सांगे मरीबी बोली जे कहूथिले, जे जने जीशु को धरिबा बेले मल्खु नामक जने सेनापति कान को मध्य काटिबा पई पछै नथिले। सेई पितर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु पर शिष्य मान को डाकी आस आमाने माछ धरी जीवा बोली कहिथिले। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनर्बार पुनरुत्थित पर सेमानक निकट को गले एवं सेमान को साक्षात करी प्रथमे से कहिले, प्रथमे जेतले सेमान कूल को आसिले भजा माछ एवं रोटी से माने देखिले। प्रभु सेमान को भजा माछ एवं रोटी सेमान को खुआइले। तार कारण होची जे खाद्य, एई खाद्य पाई तमे चिंता करूच, खाद्य पाई तमे निजर जीविका पाई तमे समुद्र को पुनर्बार चली आसीच। ए खाद्य कौन सी विषय अभाव सेवा कार्य कौन सी अभाव हम ना, कौन सी ना कौन सी प्रकार भाव तुम मान को खाद्य वस्त्र मिल जीव। मोर प्रिय भाई मान एवं भौणी माने तापरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त किछि घटना घटिबा परे पितर को पचारुचंती निजर सेवा कार्यर वास्तव
एग्जाक्ट मिनिस्ट्री वास्तव सेवा कार्य पितरंक उपरे स्थगित करने पितरंक उपरे न्यस्त करने से ताकू पचारुचंती एमानंक ठारू ए समस्त ठारू खाद्य वस्त्र बासगृह जाल माछ निजर संगी निजर अन्य शिष्य माने एमानंक ठारू तुमे कौन मते अधिक प्रेम करुअछ पितरंक ठारू एक सच्चोट उत्तर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाइबा पाई चाहूथिले एवं द्वितीय थर मध्य सॉरी पितरंक प्रभु जीशु ख्रीष्ट पचारुचंती 16 पदरे तुमे कौन मते प्रेम करुअछ बार बार जिते द्वितीय थर पितरंक पचारुचंती पितर तुमे कौन मते प्रेम करुअछ जदि तुमे पितर कहिल हाँ प्रभु मु तुमको प्रेम करुअछि यह तुमे जान प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताकू कहिले मोहर मेष मानकु प्रतिपालन कर मोहर मेष मानकु प्रतिपालन कर प्रथम कहिले मोर मेष शाबक मानकु चराओ मेष एवं मेष शाबक आमाने मेष शाबक रो विषय को आमे जानिचु मेष शाबक माने मेष मानकर छुआ मेष पालक जेतेबेले मेंढा पल को चरेबा पाई नहीं जाए से मेष शाबक माने पछरे रही जाती से मानको काखे की कांधे की मेष पालक मेष मानकर पछे 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 ए मेष शाबक मान को बोही से पल को चरे जाए पल चराए पल को प्रतिपालन करे मेष शाबक मान को बोहे कांधाए जीशु कहिले मेष शाबक मान को चराओ द्वितीय कहिले मोर मेष मान को प्रतिपालन कर प्रतिपालन पाश्चर प्रतिपालन सेमानकर खाद्य सेमानकर रहिबा सेमानकर सुरक्षा परवर्ती समय मु आपण मान को सब कथा कहबी एमान को प्रतिपालन कर प्रतिपालन प्रतिपालन रे कौन सी जगार कौन सी गोटे छिद्र कौन सी गोटे फांकार मध्य प्रतिपालन रे अवहेला करिनथिबा दाऊद पर्वतर शिखर ताको अणा जाई राजाभिषिक्त करागला मेष मान को प्रतिपालन करिबारे कौन सी फांका जगार मध्य अवहेला करिनथिबा मूसांकु पुनर्बार एक प्रचंड उद्धत ऐश्वर्यवान राजा फारों निकट को ताको ईश्वर पठेले मेष पालन को प्रतिपालन करिबा एक बहुत बड़ दायित्व जहाँ जी ए दायित्व बोली ए दायित्व को मोर मोर जीवन जीविका मोर दायित्व मते न्यस्त करा जायछि एटा गोटे बहुत बड़ सुजोग बोली जी मेष पालन कार्य को मेष को प्रतिपालन कार्य को संपादन करे परमेश्वर ताकू प्रचुर भाव में मंगल करेंगे आम जाकुबंकर कथा जानीचु जाकुब जेतेबेले निजर ससुरंकर मेष को प्रतिपालन कले गोटे स्त्री को पाइबा पाई 14 वर्ष से दासत्व बंधन रहिले दासत्व कार्य कले 14 वर्ष राहेल को पाइबा पाई 14 वर्ष से दासत्व कार्य कले मेष पालन कले मेष पालन करी निजर विश्वस्तता निजर ससुरंक पाखरे प्रतिपादन कले एवं विराट जड़े पृथ्वी निमंते आशीर्वाद जनक जड़े मनीष होइकी बाहरिले जड़े मेष पालक जाकुब सेतिपाई जाकुबंक परमेश्वर बोली कहा जाए मोर प्रिय बंधुगण मेष मान को प्रतिपालन कर बोली पितर को एक गुरुदायित्व तांकर स्कंधरे न्यस्त कले तृतीय देखा जाए प्रभु का पचारे तुमे कौन मते स्नेह करुअछ द्वितीय थर भी पचारे पितर तुमे कौन मते स्नेह करुअछ से पितर दुखित होई कहिले प्रभु मुझे तुमको स्नेह करुअछि कि ना तुमे भलरे जान पुनर्बार प्रभु ताकू दायित्व देले मोहर मेष मान को चराओ पाश्चर प्रतिपालन करिबा एवं मेष मान को चरेबा एक भिन्न भिन्न प्रकार कार्य प्रतिपालन एवं चरेबा पड़िया चरेबा तृणमय स्थान चरेबा शत्रु मान हस्तरु मेष मान उद्धार करिबा शत्रु ठारू मेष मान सुरक्षा देबा
नियमित भाव मेंढा मानकु जलपान करेबा, सेमानकर स्वास्थ्य प्रति जत्न नबा एवं ठीक समय खुआड़ को आनिबा, खुआड़े बाहर कला बेले गणति करिबा, खुआड़ भीतर को प्रवेश कला बेले गणति करिबा एक मेष पालकर मेष मानकु चरैबार गोटे गुरु दायित्व रही। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने, तेबे एतिक विषय आलोचना कला बेले आज गोटे छोट विषय मु आपण मानक पाखरे रखिबा पई चाहे। तेबे पुरातन नियम रे मेष एवं नूतन नियम रे विश्वासी, पुरातन नियम मेष को नूतन नियम रे विश्वासी सहित तुलना करा जायछि। प्रभु यीशु कहिले मु प्रकृत मेष पालक, मु उत्तम मेष पालक, मेष मानक निमंते आपण प्राण दिए। यीशु मध्य निजे मेष पालक बोली कहउचंती एवं आम मानक मेष बोली कहउचंती, विश्वासी मानक मेष बोली कहउचंती। तेबे मेष एवं मेष पालक सबु बेले जने व्यक्ति हेई थाए एवं मेष जने पशु हेई थाए, गृहपालित पशु हेई थाए। तेबे काहेकि विश्वासी मानकु मेष सहित तुलना करागला? विश्वासी मानकु काहेकि मेष मानक सहित तुलना करागला? प्रथम रे मु आपण मानक पाखरे किछि विषय उपस्थापन करा पई चाहे। जेतेबेले परमेश्वर पृथ्वी को तैयारी कले, सृष्टि कले, विभिन्न प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग तरु लता गछ पत्र सब सृष्टि कले एवं आदम प्रत्येक प्राणी मानकर नाम रखिले एवं कौन सी प्रकार पशु को गृह रे पालन करा जाऊ नथिला। आदम हवा पाप करिबा पर्यंत कौन सी पशु को गृह रे पालन करा जाऊ नथिला। आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद पोरे आदम को हवा को सर्प को ए पृथ्वी को अभिशाप देला पोरे आदम हवांकर आचरण आज्ञा लंघन पाप पृथ्वी रे प्रवेश कला पोरे ए पाप को पुनर्बार क्षमा करिवार गोटे प्रणाली सृष्टि करिबा पाई, पाप को क्षमा करिबा पाई गोटे प्रणाली सृष्टि करिबा पाई एवं रक्त बदल रक्त, पाप बदल गोटे रक्त, कारण रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। जो पाप आदम हवा करके आज्ञा लंघन से पाप को मोचन करने पाई गोटे प्रणाली, गोटे रक्ताक्त प्रणाली, गोटे बलिर प्रणाली सृष्टि करने पाई परमेश्वर गोटे योजना प्रस्तुत कले। एवं आपण माने देखिबे आश्चर्य प्रकार भाव में आदि पुस्तक 4 पर्व 4 पदरे हेबल जड़े मेष पालक थिले। हेबल मेष मान को लालन पालन करने निमंते नियुक्ति हेले। प्रथम मेष पालक, प्रथम गृहपालित पशु मेष, प्रथम मेष पालक होउचंती हेबल एवं सही जगह ही पाप क्षमार प्रमाणित करागला। मेष मान को प्रतिपालन करिवार, मेष मान सहित विश्वासी मान को मानव समाज को तुलना करिवार गोटे विषय होची मानव समाजर पाप को क्षमा करने निमंते एक पशुर रक्तर आवश्यकता अछि। परमेश्वर तो समस्त पशु मान को नहीं पारिबे नहीं, गोटे निर्दिष्ट पशु जे कि बलि उत्सर्ग करने निमंते प्रत्येक गुण रे परिपुष्ट थिबे, प्रत्येक गुण रे परिपूर्ण थिबे। से गुण गुड़ाक आपण मानक सम्मुख रे रखिबे। सेति पई सर्वप्रथमे गृहपालित पशुर ना थिला मेष एवं ए मेष मान को प्रतिपालन करिया पई हेबल प्रथम मेष पालक थिले। आदि पुस्तक 4 पर्व 4 पद। तेबे जेतेबेले हेबल पशु बलि उत्सर्ग कला, प्रथम बलि जेतेबेले हेबल उत्सर्ग कले आमे देखिबाकू पाई पारुचु कईनर मध्य कौनसी भूल नथिला, कईन मध्य कौनसी जगार निजर भूल करि नथिले किबा हेबल मध्य कौनसी जगार भूल करि नथिले। सेमाने सरल जीवन यापन करुथिले, निज निजर जीविका अनुसार कर्म जीविका अनुसार हेबल कृषि कर्मण कला हेबल कृषि कर्मण कला एवं कईन कृषि कर्मण कला
ଏବଂ ହେବଲ ପଶୁପାଳନ କଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଳି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ କଇନ ସେ ନିଜର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଫଳ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ପ୍ରଥା ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେଉଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ମୋ ନିକଟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବଲ ଏବଂ କଇନ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। କେଉଁ ବଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ, କେଉଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ହେବଲ ଏବଂ କଇନ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତଥାପି କଇନ କଠୋର ହୋଇ ନିଜର ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବଳିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତ ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ଥିଲେ? ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ କଇନ ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଶୈତାନ ହବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା ସେତେବେଳେ ଆଦମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହବା ଫଳ ତୋଳିଲେ, ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଦମ ବି ଖାଇଲେ। ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ ଆମମାନେ ମରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେବ, এই କଥା ଆଦମ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ହେବଲ ଏବଂ କଇନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହୋଇଛି। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିବା ବୋଲି ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଷୟ ନିଜର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ କହିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଆଗତୁରା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଦିନ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନିଜର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ନ ଜଣେଇକି ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଆଘାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେବଲ କଇନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଅବଗତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଇନ ଏଇ ପ୍ରଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, କଠୋର ହେଲେ, ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହେଲେ। ମୁଁ ନିଜର ଆୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବଳି ପ୍ରଥା ସେମିତି ନଥିଲା। ଏବଂ ହେବଲ ନିଜର ପଲରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଦେଇକି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ହେବଲଙ୍କର ବଳିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେଷ, ଛାଗ ଏ ବଳି ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କାପ୍ତା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷକୁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ରୋଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ
होम बलि उत्सर्ग कले से माने परमेश्वर को सम्मुखरे निजर संपर्क को अव्याहत रखा होम बलि उत्सर्ग कले। लेवी 1 पर्व 10 पदर लेखा जाइछि से माने होम बलि परमेश्वर निकट में उत्सर्ग करुथिले। द्वितीय लेवी 4 पर्व 32 पदरे से माने परमेश्वर को ठारे निजर पापार्थक बलि उत्सर्ग करुथिले। ए मेष मानकु उत्सर्ग करुथिले निजर पाप पाई निजर अधर्म पाई से माने परमेश्वर को निकट में पापार्थक बलि से माने उत्सर्ग करुथिले। तृतीय लेवी 5 पर्व 15 पदरे से माने दोषार्थक बलि परमेश्वर को निकट उत्सर्ग करुथिले। दोष एवं पाप दोषार्थक बलि एवं पापार्थक बलि पापार्थक बलि आदम एवं हव्वाଙ୍କ द्वारा आसीथिबा पापार्थक बलि। गोटे मेषर बलि उत्सर्ग रे आदम हव्वा करिथिबा मृत्युजनक पाप क्षमा हे पारिबो नाही, केवल आच्छादित हब। किंतु जो दोषार्थक बलि दैनंदिन जीवन रे जो माने दोष करुथिले भूल करुथिले से दोषार्थक बलि को क्षमा करिया पाई से माने लेवी 22 पर्व 21 पदरे मेष को से माने कोन करुथिले ना परमेश्वर निकट में उत्सर्ग करुथिले। मने रखंतु पापार्थक बलि एवं दोषार्थक बलि। आमाने चतुर्थ देखुचु मंगलार्थक बलि। परमेश्वर को जो जो मंगल विषय से माने पाइचंती परमेश्वर को संतुष्ट करने पाई परमेश्वर को धन्यवाद देवा पाई परमेश्वर को निकट में निजर मंगल विषय पाई धन्यवाद देवा पाई से माने मंगलार्थक बलि लेवी 22 पर्व 21 पदरे से माने उत्सर्ग करुथिले। तेणु मेष गोटे माध्यम परमेश्वर सहित मनुष्य सहित सुसंपर्क स्थापन करने निमंते गोटे मेष गोटाए माध्यम भाव में पुरातन नियम रे व्यवहार करा जाइछि। तेबे एई मेष मानकर चरित्र कौन थिला काहीकि ए मेष मानकु ए प्रकार होम बलि पापार्थक बलि दोषार्थक बलि मंगलार्थक बलि काहीकि एक माध्यम भाव में परमेश्वर निकट उपस्थापन करा जाउथिला। मोर प्रिय बंधुगण मेष मानकर चरित्र अद्भुत प्रकार थिला। मेष माने एक गृहपालित पशु। मेष माने होचंती गृहपालित पशु। सेमानकु कौनसी मनुष्य परिवार भितर पालन न कले से माने बाहरे लालन पालन हो पारे ना अति शीघ्र से माने मरीजिबे। से मनीष द्वारा से मानकु लालन पालन करा जाउथिला। यात्रा 3 पर्व 1 पद मूसा विषय देखुछु। यात्रा 3 पर्व 1 पदरे से माने प्रतिपालन करा जाउथिला। एवं द्वितीय आम देखा पाई पारुछु जे से माने निजे निजकु सुरक्षित देई पारिबे नाही। निजर निरापत्ता निजर सुरक्षा से माने निजे करि पारिबे नाही। आइबो तार 30 अध्याय लेखा जाइछि से माने निजे निजर सुरक्षा करि पारिबे नाही। प्रोटेक्ट निज पाखरे नाही। निजकु सुरक्षा करिया पई जनकर सहायता से माने आवश्यक करुथिले। एवं तृतीय सेमान को प्रतिपालन करने निमंते जड़े मेष पालकर आवश्यकता अच्छी। से माने निजे निजे चरी निजे कुआड़ को निजे निजर चरा बुला करके से माने बंची पारिबे नाही। अति शीघ्र से माने को कौन पशु द्वारा से माने हत हेबे शिकार हेबे। सेतिपाई से माने को लालन पालन करने प्रतिपालन करने जड़े मेष पालकर आवश्यकता थिला जहाकू पुरातन नियम रे शेफेड बोली कहा जाए। शेफेड नूतन नियम रे पास्टर बोली कहा जाउछि। जोहन 10 पर्व 4 पद एवं 27 पद शेफेड मु उत्तम मेष पालक मेष मानक निमंते मु प्राण दान करे। उत्तम मेष पालक दाऊद जने उत्तम मेष पालक थिले। मूसा जने उत्तम मेष पालक थिले। हेबल जने उत्तम मेष पालक थिले। अनेक भाववादी माने उत्तम मेष पालक माने थिले। परमेश्वर से प्रोफेशन रु से अध्यवसाय रु सेमानकु आनी निजर सेवा कार्य विनियोग करिसंती। सेमाने उत्तम भाव में मेष मान प्रतिपालन करने हेतु सेमाने आत्मिक क्षेत्र में मध्य परमेश्वर को मेष रूपक विश्वासी मानक मध्य उत्तम भाव में प्रतिपालन करेंगे बोली सेमानकु नियुक्ति देइथिले।
तापर चतुर्थ देखुचु जे सेमान प्रतिपालन खाली सेमानकर मेषपालक थे प्रतिपालन प्रतिपालन सेमानकर सुस्थता निमंते सेमानकर सबुज घास निमंते सेमानकर जलपान निमंते सेमानकर क्षेत्र गोटे सेमानकर उत्तम चराणी स्थान ए समस्त को मेषपालक को पसंद करने को पड़ूला। केवल सेतिक नुहे मेष मानकर रोग मेष मानकर विभिन्न प्रकार दुख मध्य सेमानकर शारीरिक रोग पाई आत्मिक उपचार नूतन नियम रे मेष मानकर शारीरिक रोग पाई आत्मिक उपचार आवश्यकता मेषपालक कर्तव्य था जात्रा 3 पर्व 1 पदरे मुझे आपण मान कहली। पंचम आम देखा पाइपु से जल आदि पुस्तक 29 पर्व 9 और 10 पदरे जराणी जल स्थान रे जल जो जगार अच्छी आपण मैंने अब्राहमकर जाकुबंकर एक यात्रा पथरे सेमानकर एक यात्रा परिभ्रमण समय देखा पाइपर जो जगार पानी नथिला से जगार विस्तीर्ण क्षेत्र चराणी स्थान सुरक्षित स्थान जदि से जगार पानी नथिला अब्राहम कूप गुड़ाक खोली बड़ बड़ कूप गुड़ाक खोलुले आमने जाकुबों कूप कथा देखुचु जोसेफों कूप कथा देखुचु अनेक कूप गुड़ाक खोल जाइतिला एवं से माने से जगार मेष मान को जलपान कराउथिले। अब्राहम 10 गोटी कूप खोली पलेस्टीय लोक मैंने पोती देले शेष गोटे कूप थिला गोटे कूप बंचिकी थिला प्राय 3000 वर्ष तलर कूप अब्राहम जेतले जोसेफ अब्राहम जाकुबों को दान करथिले से कूप जीवंत जलर कूप जहाँकि आम नूतन नियम जहन 4 अध्याय समीरणीयंकर कहानी क्षेत्र रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट एवं समीरणीयंकर जीवंत जल स्रोतर कहानी रे आमे ताकू देखा पाइपुँ जीवंत जल स्रोत से कूप सेमिति प्रकार अब्राहम खोलुथिले। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने जल दरकार एवं षष्ठ रे सेमानक विश्राम स्थान दरकार सेमानक विश्राम स्थान दरकार यथेष्ट मेष मानक विश्राम दरकार मानसिक विश्राम आत्मिक विश्राम शारीरिक विश्राम यथेष्ट भाव से विश्राम दरकार तेबे जाई गोटे मेष हृष्टपुष्ट भाव से बंची पारिबो एवं ईश्वरकर बलि रूपे से निजक उत्सर्ग करने निमंते सक्षम हब। कौन सी प्रकार केवल निखुंत मेष को केवल बलि उत्सर्ग करा जाए निखुंत मेष को केवल बलि भाव उत्सर्ग करा जाए। कौन सी रोग कौन सी खंडिया खाबरा कौन सी छोटी मेष कौन सी दुखग्रस्त मेष को बलि रूपे उत्सर्ग करा जाए नहीं सेतिपाई निखुंत निर्दाग मेष को केवल उत्सर्ग करा जाए। जेतेबेले 6 गोटी 7 गोटी विषय जेतेबेले गोटे मेष प्रति जतन करा जाए सेतेबेले जाए गोटे मेष हृष्टपुष्ट हुए। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आमाने देखिबा पाइलु जे या बादे आउ मध्य विश्वासी मानक केतोटी विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुलना करिसंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितर को कहिले पितर तुम्हें समुद्र रे माछ धरुथिलो किंतु वर्तमान तुम्हें सुखिला जगार मध्य माछ ही धरिबो सुखिला जगार माछ ही धरिबो। पितरंकर प्रोफेशन को पितरंकर अध्यवसाय को प्रभु परिवर्तन करि नाहंती माछ धरिबार प्रोफेशन को प्रभु परिवर्तन करि नाहंती किंबा मोसांकर प्रोफेशन को मोसांकर व्यवसाय को अध्यवसाय को प्रभु परिवर्तन करि नाहंती किंबा दाऊदंकर अध्यवसाय को प्रभु परिवर्तन करि नाहंती। दाऊद पर्वत शिखर रे जीशुंकर निजर बापांकर मेष मान को प्रतिपालन करुथिला से जेरूसालेम रे राजप्रसाद रे एक राज सिंहासन रे बसिकी परमेश्वरंकर मेष मान को प्रतिपालन कला प्रजा मान को प्रतिपालन कला
ଦାଉଦ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ନୁହେଁ। ଜେରୁସାଲେମ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମେଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ବା ମେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଯେଉଁ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିଶ୍ରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ 6 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବେ, 70 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 6 ଲକ୍ଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯିଏକି ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କେବଳ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କର ଉଦରରୁ ହିଁ ତାକୁ ବାଛିଲେ। ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଫାରୋ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋଶାଙ୍କର ମା ଯୋକେବଦ ମୋଶାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ, ଏ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବି ବୋଲି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବା କଥା ଆମେ ବାଇବଲ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାଛ ଧରିବ। ତେବେ ଏଇ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ, ମାଛ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ପାଣିରେ ଥିଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ, ପାଣିରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମାଛ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀର ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସରେ ସେ ରହେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଛମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ମାଛମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣଦାନ, ମୁଁ ମାଛମାନଙ୍କର କେଉଟ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ, ମୁଁ ମେଷପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମାଛମାନଙ୍କ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମାଛ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଗୋଟେ ପାପମୟ ପୃଥିବୀ। ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମାଛ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପେଟରେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ମାଛ ଦେହରେ ଲୁଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି କାଟିକି ସିଝେଇଲେ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମେଷ, ପୁରୁଷ ମେଷ, ରାମ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ରାମ ଯିଏକି ପୁରୁଷ ମେଷ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ କୁହାଗଲା। ମେଷ ଶାବକ, ଛୋଟ ମେଷ, ରାମ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ମେଷ, ଜିହୁଦାର ସିଂହ, ପୁରୁଷ ମେଷ ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, କେମିତି ପୁରୁଷ ମେଷ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ସେ ଗୋଟେ ରାମ୍ସ ହର୍ନ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମେଷର ସିଂହ ନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜିତ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏଇ ପୁରୁଷ ମେଷର ସିଂହ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ
राजा को जड़े राजाभिषेक करने गोटे पुरुष मेष को हत हवा पड़ो बलि करने को पड़ो एवं ताठू सिंह आनिकी हर्न आनिकी से उपरे तैल भर्ती करके राजा को अभिषेक करा पड़ो सॉरी राजाभिषेक करागला से प्रकार भाव राम अर्थात पुरातन नियम प्रभु जीशु ख्रीस्ट अभिषेक माध्यम से राम्स हर्न रे से थिले जीत तैल रे थिले शास्त्रगत अभिषेक मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने मु आपण मान को कहली मेष हेबलों ठारू आसीछि पुरातन नियम आदम हव्वा जतले पाप कले बलि उत्सर्ग करी पाप को आच्छादन करने निमंते से माने बलि को उत्सर्ग करने ए प्रकार गोटे पशु नेले जो पशुरे समस्त गुण गुड़िक थिबो जी कि निजस्व किछि नथिबो जी कि अन्य द्वारा सुरक्षित होतिबो आउ जहाँ यदि खुआड़ भितर ताको रखा जाउतिबो जहाँ जड़े लोक प्रतिपालन करिवो जड़े लोक जल जगेइबो एवं एक विश्राम स्थान पाइबो से प्रकार एक मेष चरित्र को नहीं विश्वासी चरित्र सहित तुलना करा जाए प्रभु मेष मान को बाछिथिले एवं आम मान को मध्य विश्वासी मान को मेष सहित तुलना करथिले एवं ए समस्त मेष मानकर दायित्व प्रेरित पितर को प्रभु कहते मोर मेष शावक मान को प्रतिपालन कर मोर मेष मान को तुम पालन कर और मोर मेष मान को प्रतिपालन कर मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने ए वाक्य पर प्रभु आपण मानकु उत्तरोत्तर आशीर्वाद करंतु एवं आत्मिक जीवन में वृद्धि पाइबा साहाय्य करंतु प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद धन्यवाद।